When I go to vote, because I know that only one candidate will win and that only one party or coalition will form the government, therefore, I do not necessarily vote for the candidate or the party that I like most. If I feel that that candidate or that party has no chance of winning, because then I feel that my vote will be wasted. Therefore, I say that I don't want to waste my vote. I will therefore see which party or which candidate have some chance of winning and vote for the less bad among or least bad among those candidates or parties. Now, how do I form this perception as to who has some chance of winning or not? That perception is formed on the basis of the visibility of the candidates and the political parties. And visibility is bought largely by money. Barring some very exceptional circumstances, visibility comes from advertisements in newspapers and television. Visibility comes from big hoardings which are put up. Visibility comes from posters, banners, etc., and handbills which the candidates' paid representatives go around distributing. And visibility also comes from large election rallies which are also organized by money. Therefore, this perception game is a game of money. And therefore, those parties and those candidates which have a lot of money have a huge advantage in our electoral politics. Now, in order to reduce the influence of money in electoral politics, a limit was put on the spending of candidates. That limit for Lok Sabha is about 75 lakhs. But there is no limit on the spending by political parties. So if BJP puts up 500 candidates in the whole country, maximum the BJP candidates put together can spend 400 crores. But during the same time, BJP gets 16,000 crores by way of electoral bonds and other donations. So the BJP can spend 16,000 crores apart from undisclosed cash which they get, which has been estimated to be even more than 16,000 crores. But assuming that they don't get any undisclosed cash and they only get disclosed money, but that also is 16,000 crores, which is 40 times of what their candidates can spend in elections. So it makes a mockery of putting a limit on the spending by candidates when there is no limit on spending by parties. Secondly, therefore, there needs to be a limit on spending by political parties also. Secondly, there are candidates who are spending 75 crores in a Lok Sabha election, and they get away because they disclose only 75 lakhs, the rest is undisclosed cash that they spend. Now, how do you deal with this? Of course, Election Commission has ways and means of finding out and dealing with it, but they don't. They prefer to turn a blind eye to this. But there is a way, which is to bring a one-line law which says that candidates and political parties can only take money and spend money through banking channels. They will not use cash. If they use cash, it will be a corrupt practice for which they will be disqualified. Simple one-line amendment in the Representation of People Act could have been brought. When Modi ji introduced demonetization, he said one reason was that he wanted to have a cashless economy so that people transact all their business through check and through banks. I can understand that ordinary people cannot transact everything through banks. They need cash also.
But at least candidates and political parties could be required to use only banking channels and not use cash. So that could have been done. That was not done. Thirdly, we could and should introduce proportional representation also. Most countries have, especially European countries, some form of proportional representation also. That means at least half the seats are allocated on the basis of proportional representation, where you go and vote for the party. Now, for party of your choice, every party has a list of candidates, 1, 2, 3, 4, up till 542 or whatever. And if a party gets only 2% vote, then 2% of their candidates get elected. So therefore, out of 545, 2% means 11. So suppose the Communist Party of India gets 2% vote, then they will send at least 11 representatives to Parliament. The first 11 people will get elected. There is a refined, better system than this also, where you cast 2 votes. One for the party and one for your favorite candidate in that party. Then, if 11 people of Communist Party have to be elected, they will not be the first 11 people selected by the party, but those 11 who get the maximum votes within that party. So, that's a system in which people will not feel that I am wasting my vote, because I know that even if a party gets 1% vote, 1% people will get elected. So therefore, they will freely vote for the party or candidate of their choice. Then you can and you should also have state funding of elections, because today one of the problems is that individuals some individuals and some smaller political parties, of course yesterday or day before yesterday, even the Congress candidate from Puri has withdrawn, because she says that I don't have money, the party is not able to give me any money, I don't have any money to fight the elections. Therefore, you can imagine the plight of, suppose Prafulda had to contest elections. How will he spend 75 lakhs for the elections? And you need to spend some money in order to have at least some campaign, some visibility, etc. So therefore, the answer to that is state funding of elections, where at the end of the elections, the government gives the candidates money in accordance with the votes that they receive. So if a candidate receives, say, 1 lakh vote, the government gives him 50 rupees per vote, that is, say, 50 lakh rupees, so that he can borrow money from friends and relatives before the election, spend that money, and thereafter get the money from the government and pay back the people from whom he has taken loans. This state funding of elections is also practiced in many countries. And this should be done in India. There is no reason why it can't be done in India, because contrary to what many people say, it is not financially impossible. It is very easily possible. The total spending on state funding will come to, there are about 60 crore people maximum who vote in a general election. 60 crore, if you give 50 rupees per vote, that comes to 3,000 crores total. And you don't even pay everybody 50 rupees, because there will be some candidates who get more than 1.5 lakh votes. That means they would be entitled to get more than 75 lakhs. So you put a cap on 75 lakhs. So your actual cost will come to half of this, which is about 1,500 crores in one general election. That is nothing, because the government is giving more than 1,500 crores by way of MP local area development funds to MPs every year. They are giving 5 crores per MP per year. That comes to more than 2,500 crores per year. So therefore, it is not too much money for the government. They can easily do state funding of elections. Now the question is, these are the kind of electoral reforms which we need
if we want our elections not to be reduced to a game of money as it is today, the question is who will do these reforms. Government is not interested because those parties which are large parties which are ruling and or who have some chance of coming to power, they are getting the advantage of the present system because they know that they will get funds, other parties will not get funds, they will have a huge advantage, and let the elections be a game of money only. So therefore they don't want these reforms. So how will these reforms be brought? I have mentioned 4 reforms. One is to prevent cash, make a simple one-line law amendment in the Representation of People Act that candidates and political parties will not deal in cash. Second, limit on spending of political parties. Third, state funding of elections. And fourth, proportional representation. Now, if we want these reforms and these reforms go to the root of our democracy, we will have to run a campaign, we will have to create a movement around these reforms. Just as there was a movement about the Lokpal law, because of which they had to bring a Lokpal law. It's another matter that after bringing the law, they have appointed useless Lokpals and therefore that law is not doing anything. But they had to bring that law because of public pressure of this campaign, of this movement. So we will have to create a movement around these electoral reforms for them to come about. I'll end here. Thank you. इलेक्टोरल बॉन्ड की बात काफ़ी हद तक हुई, पर मुझे लगता है कि जो बड़ा प्रसंग है, परिप्रेक्ष्य है, उसे समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी चीज़ हमारे देश में कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। जहाँ पे भी हम चुनाव में आज स्पीचेस सुन रहे हैं, किस तरीके की नफ़रत और विभाजन की बातें होती सुनाई दे रही हैं और ब्लेटेंटली ये बात हो रही है, कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं पर कास्ट के नाम पर, कहीं पर एथनिसिटी के नाम पर। मणिपुर में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, परसों ही 1 साल का पीरियड हो गया मणिपुर में जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है उसे होते हुए। और हम अगर देखें हमारे देश में कैसे असमानता बढ़ती ही चली जा रही है। जो हाशिए पे रहने वाले हैं, चाहे वो गरीब हों, आदिवासी हों, माइनॉरिटीज़ हों, उनका हाल दिन पर दिन कैसे बिगड़ता जा रहा है। और कुछ चंद परिवार हैं, और हमें जो रिसर्च है वो ये दिखा रही है रिपोर्ट्स कि 9 परिवार हैं देश में जिनके पास देश का 50% धन राशि इकट्ठी है। तो 50% सारा धन देश का 9 परिवारों में बटा है। और ऐसा लगता है कहीं पर भी देखें, ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे हम कहते हैं वो ही कहीं पर चल पड़ा है और देश को लोकतंत्र से दूर लेता जा रहा है। क्योंकि अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा था उस बात को भी सोचें, उन्होंने कहा कि हमने एक पर्सन को एक वोट की बात तो कर दी संविधान में, लेकिन अगर इतनी असमानता होगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये कहीं पर हम देख रहे हैं कि कैसे वो चंद ही कैपिटलिस्ट्स हैं, कंपनियां हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए भी और अलग अलग तरीक़ों से पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे देती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से लोगों से फिर वोट, चुनाव का ये जो पूरा मेला लगता है जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, जैसे प्रशांत ने भी बात करी, वो चलाते हैं। और एक तरह से हमारा पूरा चुनाव और लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है। अब इसमें जब हम चर्चा करते हैं कि क्या होने की ज़रूरत है, प्रशांत ने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो बताई। मैं एक चीज़ की आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी हम याद रखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की इतनी बात हुई, लेकिन जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो आज भी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि अगर हम जीत कर आए, 3rd टर्म मिली, तो हम फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किसी ना किसी रूप में ले आएंगे।
जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, तो आप कैसे लाएंगे अनलेस आप ये कह रहे हैं कि आप संविधान को ही बदल देंगे अगर आप तीसरी बार चुनकर आए तो। ये बड़ा सवाल है आज हमारे सामने। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें कैसे हो पाती हैं, ये जो जब हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है, गारंटी करता है, जब हमारा संविधान सेक्युलर फैब्रिक की बात करता है, तो ये सब हो कैसे रहा है? और ये सब मुझे लगता है इसलिए हो रहा है कि संविधान में और कानूनों में जिन भी संस्थाओं को बनाया गया है, इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है कि वो इक्वालिटी को इंश्योर करें, जस्टिस को इंश्योर करें, सेक्युलरिज्म को इंश्योर करें, वो सारे इंस्टीट्यूशंस आज तहस नहस होते दिख रहे हैं। एंड आई फील, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी मांगे जिनकी बात हुई उसके साथ में वी पुट ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस ऑन नोटिस एज सिटीजन्स। अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में लोगों का तंत्र हो, तो हमें एक ऐसा मुहिम ज़रूर खड़ा करना पड़ेगा, लोगों का मुहिम होना पड़ेगा, जो कहे कि कोई भी सत्ता में बैठा हो, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं जिनका काम है कि संविधान सही से चले, देश के जो कानून संविधान के तहत बने हैं वो सही से चले, वो संस्थाएं सही से चलनी चाहिए। आज संस्थाएं दो तरीके की हैं। एक संस्थाएं ऐसी हैं जो अपना काम ही नहीं करती, उन्हें इस लायक ही नहीं छोड़ा गया कि वो काम कर सकें। मैं सूचना के अधिकार के कानून पर काम करती हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो बार बार हमारा शोध दिखा रहा है वो है कि कैसे सरकारें बातें बड़ी बड़ी चाहे कर लें, लेकिन वो कैसे सूचना के अधिकार कानून के तहत जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, आयोग है, और जो राज्य आयोग हैं, उन्हें कैसे तहस नहस कर रही है। रिकॉर्ड है कि पिछले 10 साल में ऐसी सरकार बीजेपी की जो कहती थी हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, हम ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, वो सरकार ने एक भी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं करी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब तक सुप्रीम कोर्ट ना गए हम। कितने राज्य हैं देश में? अभी हाल ही में 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना और झारखंड, जहाँ पर एक भी कमिश्नर नहीं है, केवल बिल्डिंग है, कमिश्नर नहीं है, तो कमीशन चल ही नहीं रहा। ये हालात हैं हमारे कमीशंस के आज की तारीख में। जब अपॉइंटमेंट की जाती है उनकी, तो भी ऐसे की जाती है कि acolytes ऑफ द रूलिंग पार्टीज आर मेड टू सिट इन दोज पोजिशंस। तो हमारे अधिकारों का वो कैसे समर्थन करेंगे और कैसे बचाव करेंगे जब इस तरीके से इस कमीशन को रोका तोड़ा जाएगा। आप देख लीजिए, लोकपाल की इतनी बड़ी चर्चा हुई थी, कितनी बड़ा कैंपेन हुआ था पूरे देश में, उसके कहीं पे वहीं से उठकर बीजेपी पावर में भी आई। लोकपाल कहाँ है? किसी ने सुना है? आप ये देख लीजिए कि 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट इस डेटा को बाहर आए हुए। प्रशांत जो हैं वो अब ये SIT की मांग लेकर ये 2 संस्थाओं की ओर से जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लोकपाल कहाँ है? क्यों लोकपाल ने अभी तक आगे आकर इलेक्टोरल बॉन्ड का केस नहीं उठाया और कहा इसमें तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, मनी ट्रेल नज़र आ रही है, व्हाई इज द लोकपाल साइलेंट? और उसका कारण बड़ा क्लियर है कि लोकपाल कानून तो बन गया, लेकिन लोकपाल एक की भी नियुक्ति नहीं हुई 5 साल तक। 2014 में कानून बना, बड़ी बड़ी बातें हुई, बीजेपी ने करी, और 2019 तक एक भी अपॉइंटमेंट नहीं करी। जब अपॉइंटमेंट करी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बगैर कर दी, अपने ही लोगों को 10 को चुन दिया। वो कुछ नहीं कर रहे, सैलरी ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे हैं ये बात, लोकपाल के मेंबर ने रिज़ाइन कर दिया, वो जज रह चुके थे, उन्होंने कहा मैं खाली बैठने की सैलरी क्यों लूँ, कुछ काम ही नहीं होता है यहाँ पर, कोई रूल्स ही नहीं बनाए गए हैं कि हम काम कर सकें। आज भी यही हाल है। केवल एक ही केस में मैंने लोकपाल को जागते हुए सुना, वो जब महुआ मोइत्रा के खिलाफ उनको कुछ बोलना पड़ा तो वो जाग गए। कुछ नहीं हो रहा लोकपाल में। ये तो हाल है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। मैं कहूँगी ये तो फिर भी भले इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेपनाइज्ड हैं,
जिनका पूरी तरह से इस सरकार ने उन्हें वेपनाइज करके इस्तेमाल कर रखा है। ईडी, सीबीआई, आप ये सब इंस्टीट्यूशंस को देखिए, ये इंडिपेंडेंटली काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, पर ये इंस्टीट्यूशंस क्या काम कर रहे हैं? ये सरकार, आज जो डेटा निकल के आ रहा है, शर्म की बात है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस जिन्हें लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होनी चाहिए उसमें सीबीआई को देखना चाहिए था, वो सब छोड़ के आज वो एक वॉशिंग मशीन का हिस्सा बन के, कुछ पुर्जे बन के रह गए लगते हैं। जहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि उनकी रेड होती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से बीजेपी को कंपनियाँ पैसे दे देती हैं, इसलिए कि भाई हमारा तो आप वॉशिंग मशीन में चला दीजिए हमें। ये इस्तेमाल हो रहा है, इनका इस्तेमाल हो रहा है कि ऑपोजिशन लीडर्स को आप जेल में डालिए। इनका इस्तेमाल हो रहा है कि जो भी आवाज़ उठाते हैं, जो भी डिसेंट करते हैं, वॉइसेस हैं, उनको आप जेल में डलवा दीजिए। ये इस्तेमाल हो रहा है इनका, और कैसे हो रहा है ये भी स्पष्ट है। ईडी के डायरेक्टर थे एसके मिश्रा। मिस्टर मिश्रा जो थे, उनकी जब अपॉइंटमेंट हुई, उनका जब रिटायरमेंट का टाइम आया, रात में 12 बजे के करीब एक फरमान जारी हो गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली उनकी अपॉइंटमेंट को बदल दिया जाएगा। क्यों? 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। उसको लेकर कोर्ट जाया गया। कॉमन कॉज, प्रशांत भूषण वकील थे और कॉमन कॉज लेके गए उस केस को कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, आप एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, क्या कारण है आप एक्सटेंशन दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप ऐसे एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब देने का तो ऐसे होता है कि भाई वो बंदा आपका काम करता रहेगा और आप उसको एक्सटेंशन देते रहेंगे, तो ऑटोनॉमी कहाँ गई, इंडिपेंडेंस कहाँ गई? और उन्होंने केस में लिख दिया जजमेंट में कि एसके मिश्रा को अब फिर से अपॉइंट नहीं किया जाएगा, मतलब बाय नेम ही वाज मेंशन। जब एसके मिश्रा रिटायर होने लगे, फिर से 2 कानून बदलने के लिए, संशोधन के लिए, एक ईडी के डायरेक्टर की पोजीशन के लिए जो कानून है और सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति का जो कानून है, उसमें ऑर्डिनेंस लाया गया फिर मिडनाइट पे। क्या ऑर्डिनेंस लाया गया कि हम जो बैठे हुए डायरेक्टर हैं उनको हम पीस मील तरीके से 1-1 साल की एक्सटेंशन देते रहेंगे और एसके मिश्रा को फिर एक्सटेंशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसके मिश्रा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो कैसे दी जा सकती है? कंटेम्प्ट है, लेकिन वो दे दी जाती है। एसके मिश्रा उसके बाद 3 साल और लगातार लगे रहते हैं प्रिटी मच, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फिर फाइनली सुनवाई करके नहीं कहते कि अब आप हट जाइए। और सरकार ने इतनी लड़ाई लड़ी, ये कहकर इनको नहीं हटा सकते हैं, FATF का रिव्यू होने वाला है और आसमान टूट पड़ेगा अगर ये हट गए तो हमारा काम कौन करेगा, देश का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। डायरेक्टर हमें बहुत अच्छे चाहिए वहाँ। डायरेक्टर जो थे एसके मिश्रा जब हटाए गए, उसके बाद से आज तक कोई डायरेक्टर नियुक्त नहीं हुआ ईडी का। ईडी इज़ हेडलेस। तो एसके मिश्रा जो हमने पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस देखा, ये 2018 से जो बॉन्ड्स बिक रहे थे और 2024 तक बिके हैं जो बॉन्ड, इसके अंदर से 5 साल का कार्यकाल एसके मिश्रा जी का था ईडी में। तो जो हम देख रहे हैं कि ईडी के छापे पड़ते हैं और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं, ये किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सीबीआई में हम सब जानते हैं कैसे डायरेक्टर जो राफेल का, जिनके समय पर पूरा मामला आया था, आलोक वर्मा, उन डायरेक्टर को ओवरनाइट हटा दिया जाता है, उनकी जगह एक कंप्लीटली इलीगल तरीके से किसी और को डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है, क्योंकि सरकार समझ गई है कि हमें अगर किसी संस्था को तोड़ना है, लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करने देना, तो हमें क्या करना है, उसके जो टॉप पे बैठे हैं उनको हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर देना है, अपने किसी बंदे को वहाँ लगा देंगे हम, तो काम हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? अब आप इलेक्शन कमीशन का देख लीजिए, अनदर केस विच प्रशांत हैज़ फॉट। इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नहीं ऐसे अपॉइंट कर सकते, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ
गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ दैट इंटायर जजमेंट वॉज दैट जब इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हों, ये नहीं होना चाहिए कि सरकार जो कि एक रूलिंग पार्टी के जिसमें हस्तक्षेप है वही उनको अपॉइंट कर दे। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता, जो कि संविधान में लिखा था बनाया जाना चाहिए, तब तक प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। तुरंत कानून आ गया और कानून ने क्या किया? कोई भला काम नहीं किया। कानून में यह आ गया कि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे तो वो तो अमित शाह जी हो गए। उन्होंने बैठकर तय करना है। तो 2:1 मतलब पूरा रेशो फिर प्रिपॉन्डरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन को एक के बाद एक शिकायतें जा रही हैं। हेट स्पीच की शिकायतें जा रही हैं, हर एक चीज़ की शिकायत जाती है। क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? और ऐसे में जब जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, अगर वो बॉडी जो है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि वहाँ पर 3 ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें आज में जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसी ने सिलेक्ट करके बिठाया है, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे और क्या पब्लिक ट्रस्ट होगा उस बॉडी के अंदर किसी का? तो मुझे लगता है कि अगर हम सोचते हैं कि हम क्या क्या करने की ज़रूरत है और यहाँ से हम आगे कहाँ बढ़ें, बहुत ज़रूरी है कि उसमें हम इस बात को ना भूलें कि जब तक ये संस्थाएं जो हैं, जुडिशरी, 6 साल क्यों लगे? ये केस तो 2017-2018 में हो गया था दर्ज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। क्यों ऐसा हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद एक 2019 का जनरल इलेक्शन हो गया, देश में सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हो गए और अब पूरे कॉफर्स भर गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के। उसके बाद अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद किया गया है जब नेक्स्ट चुनाव शुरू हो रहा है। जुडिशरी क्यों जिस तरीके से लोकतंत्र में काम करना चाहिए आज नहीं कर रही? वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट्स का और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जुडिशरी में भी हम देख रहे हैं कि सिविल लिबर्टीज़ कैसे लोगों को बेल ही नहीं दी जा रही है। UAPA, PMLA, मतलब इतने ड्रैकोनियन कानून हैं जिनका इस्तेमाल खुलेआम पॉलिटिकल ऑपोजिशन और डिसेंटिंग वॉइसेस को क्रश करने के लिए किया जा रहा है। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको अपहोल्ड कर दिया जाता है, उसके ड्रैकोनियन प्रोविजंस को। तो जुडिशरी को भी हम अगर नोटिस पर नहीं डालेंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं डालेंगे, हमारे सारे ED, CBI इन सबको नहीं डालेंगे, लोकपाल, लोकायुक्ता और इंफॉर्मेशन कमीशंस को नहीं डालेंगे, तब तक देश में लोकतंत्र हम जिस टाइप का चाहते हैं नहीं आएगा। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सल्यूशंस की बात हुई थी, कि जो तमाम बातें प्रशांत ने कही उसके साथ में हम इसको ज़रूर जोड़ें और इसकी तरफ अपना एक पूरा मुहिम हम बिल्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।